Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7th subject science. I am your science teacher Aisha Nasreen. This is the second part of the digestive system of chapter 1. Now open page number 7. Today's topic is liver, gallbladder and pancreas. Liver, gallbladder and pancreas are digestive glands that help in the digestion of food by releasing different secretions. लिवर, गॉलब्लैडर और पैनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. The liver is the second largest organ in the body that weighs about 3 pounds. लिवर हमारी बॉडी का दूसरा बड़ा ऑर्गन है जिसका वज़न 3 पाउंड्स है. It is located below the diaphragm at the right side of the stomach and above small intestine. ये डायफ्राम के नीचे स्टमक के राइट साइड और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता है. Liver produces and secretes bile into the small intestine. लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है. Gallbladder is a pear-shaped small-sized organ located just below the liver. Gallbladder जिसको पित्ता कहा जाता है नाशपाती की शक्ल का होता है जो कि लिवर के नीचे पाया जाता है. The gallbladder is used to store and recycle. Recycle means दोबारा इस्तेमाल में लाना. The excess means ज़्यादा amount of bile from the small intestine. This stored bile is reusable for the digestion of upcoming meals. Meals means खाना. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है और दोबारा इस्तेमाल में लाता है. जो खुराक हम खाते हैं उनके डाइजेशन में ये स्टोर्ड बाइल दोबारा हेल्प करता है. The pancreas is a large gland located just below the stomach. Its length is about 6 inches. पैनक्रियास जिसे लबलबा कहते हैं एक लार्ज ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे पाया जाता है जिसकी लेंथ 6 इंचेस होती है. Its head is connected to the duodenum and the tail is pointed to the left side wall in the abdominal cavity. इसका सिरा ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और आखिरी सिरा एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड वॉल की तरफ होता है. The digestive enzymes are secreted into the small intestine by pancreas to accomplish means मुकम्मल करना the chemical digestion of food. फूड की मुकम्मल केमिकल डाइजेशन के लिए पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है जो कि फूड की मुकम्मल ब्रेकडाउन करता है. Do you know the food travels in seconds through mouth and esophagus? It takes up to 3.5 hours in stomach. It travels in minutes through small intestine and in hours through large intestine. फूड माउथ और एसोफेगस में विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करता है और इसको डाइजेस्ट करने में स्टमक 3.5 घंटे लगाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिनट्स में ट्रैवल करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में घंटों में ट्रैवल करता है. Digestion and its importance. Digestion is the process of conversion. Conversion means tabdeel of the large and complex. Complex means pechida pieces of food into. Now turn the page. Number 8. Small and simpler components. Digestion एक ऐसा process यानी कि अमल है जो कि खुराक के बड़े और पेचीदा टुकड़ों को छोटे और सिंपल अज्जा में तब्दील करते हैं. The food is digested into 2 steps, mechanical and chemical digestion. Food 2 steps में डाइजेस्ट होता है. एक को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं और दूसरे को केमिकल डाइजेशन कहते हैं. Mechanical digestion is the physical breakdown of large pieces of food into smaller pieces. Mechanical digestion में food के larger pieces छोटे यानी कि smaller pieces में convert होते हैं.
This step begins with the chewing of food by teeth and continues through the mixing of food by the peristalsis in stomach and intestines. ये स्टेप माउथ से स्टार्ट होता है जिसमें टीथ फूड को चबाने में हेल्प करते हैं और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए से स्टमक और इंटेस्टाइन्स में फूड की मिक्सिंग का अमल जारी रहता है. Chemical digestion is the breakdown of larger food molecules into smaller ones. Chemical digestion में food के larger molecules smaller molecules में convert हो जाते हैं. It also begins in the mouth by the action of an enzyme, salivary amylase, present in saliva that splits means तकसीम the complex carbohydrates into simple carbohydrates. और ये प्रोसेस यानी कि केमिकल डाइजेशन भी माउथ से स्टार्ट होता है. हमारे मुंह में केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स की मदद से होता है. मसलन माउथ में सलाइवा एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे हम सलाइवरी एमिलेज कहते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. The chemical digestion continues in stomach with the help of hydrochloric acid and enzyme pepsin. जबकि स्टमक में फूड की केमिकल ब्रेकडाउन HCl और एंजाइम पेप्सिन की मदद से होता है. Most of the chemical digestion takes place in the small intestine with the action of pancreas. The pancreas secretes pancreatic juice which digests carbohydrates, lipids and proteins into monosaccharides, fatty acids and amino acids respectively. ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो कि पेनक्रियास की मदद से होता है. पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है और मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. Bile from the liver also facilitates the chemical breakdown of fats into smaller molecules. बाइल जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है फैट्स की ब्रेकडाउन करता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. Now look at the diagram process of digestion. जब हम फूड खाते हैं तो च्यूइंग का अमल जारी हो जाता है जिसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. चबाने के बाद फूड एसोफेगस के ज़रिए स्टमक में आ जाता है जहाँ पे मज़ीद चढ़ने का अमल जारी रहता है. इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. केमिकल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन का अमल माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है. जब फूड स्वालो हो जाता है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए यानी कि एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से फूड डाइजेस्ट हो जाता है. एब्सॉर्प्शन का मतलब है जज़्ब करना. जब न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में एब्सॉर्ब हो जाते हैं और वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है. इंपॉर्टेंस: The breaking down of food into useful nutrients is carried out by digestion. The body uses these nutrients for energy and growth. वो फूड जिसकी डाइजेशन के प्रोसेस में ब्रेकडाउन हो चुकी होती हैं न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. When anyone eats food, grains, meat, fruits and vegetables, it is not in a form that body can use it as energy source. It is necessary to change the food into smaller molecules of the nutrients so that the blood may carry and absorb them to cells throughout the body. So we can say that digestion is necessary means ज़रूरी for our survival. Survival means ज़िंदा रहना.
जो खुराक हम खाते हैं जैसे कि सब्जियां, गोश्त, फल, अनाज वगैरह इस फॉर्म में नहीं होते जिससे हमारी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि फूड को न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ायत में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाए ताकि ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के हर सेल तक ले जा सकें और ये सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी दे सकें। ज़िंदा रहने के लिए डाइजेशन का अमल बहुत ज़रूरी है। नाउ टर्न पेज नंबर 9। डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स यानी कि खाने की मुख्तलिफ अक़साम का अमल इंहिज़ाम। आर डाइट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates, fats, proteins, etc. All this food is converted into the usable form through the process of digestion. Following are the enzymes that facilitate these conversions. हमारी डाइट में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा और ये फूड डाइजेशन के अमल में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें मंदरज ज़ेल एंजाइम्स अहम रोल प्ले करते हैं। मसलन स्लाइवरी एमिलेज एक एंजाइम है जो कि थूक की फॉर्म में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि स्टमक में पाया जाता है और ये प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम स्टमक में मौजूद होता है और ये भी प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल भी एक एंजाइम है जो कि लिवर में मौजूद होता है और ये लिपिड्स के साथ रिएक्ट यानी कि ब्रेक डाउन करता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस इज़ ऑल्सो एन एंजाइम जो कि पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स मीन्स बदनज़मी यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम में बदनज़मी या ख़राबी। Following are the common disorders of the digestion. Number 1, diarrhea means dast ya ashal. Diarrhea is an increase in the frequency of bowel movements. This increases the looseness of stool. It is caused by increased amount of secretion of fluids into the intestine. It also reduces the absorption of fluid from the intestine. इस कंडीशन में वाटरी फीसेस यानी कि हमारे जिस्म में फाजिल मादा बार बार पानी की शक्ल में निकलता है। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो जाए तो ये कंडीशन सीरियस भी हो जाती हैं। सिम्टम्स यानी कि अलामात एसोसिएटेड विद डायरिया इंक्लूड एब्डोमिनल पेन मेनली क्रैम्पिंग मीन्स मरोड़ एंड वोमिटिंग मीन्स मतली या उल्टी। अब अलामात क्या है? डायरिया से पेट में बहुत दर्द होता है, खिंचाव महसूस होती है और वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। Constipation occurs when the bowel movements means antho are tough or happen less often than normal. It is the condition when the stool becomes harder and more difficult to pass out. The normal duration between bowel movements changes greatly from one person to another. कॉन्स्टिपेशन में फीसेस यानी कि स्टूल हार्ड हो जाते हैं जिसमें आंतों की मूवमेंट टफ और नॉर्मल रूटीन से कम हो जाती हैं और बॉडी से एलिमिनेट यानी कि खारिज करना मुश्किल हो जाता है। हार्ट बर्न यानी कि सीने और मैदे में जलन का एहसास। Heartburn, acid indigestion means badhazmi, results in the production of sensation of burning in stomach and the patient might feel sour taste in the mouth.
द पेशेंट फील्स द सिम्टम्स मोर देन 2 times in a week. इंडाइजेशन यानी कि बदहज़मी के दौरान स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे पेशेंट को मुंह में खट्टी टिकारे आती हैं और सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट को वीक में 2 times से ज़्यादा तकलीफ़ होती है. टर्न पेज नंबर 10. अल्सर मीन्स अंदरूनी ज़ख़म. अल्सर टेक्स प्लेस व्हेन द इंटरनल लाइनिंग यानी कि तह ऑफ द स्टमक इज़ डैमेज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. It is caused by Helicobacter pylori. This bacteria transfers through spicy food. High stress levels also activate ulcer-causing secretions. The severe side effects of some medicines, that is aspirin, can also cause ulcer. अल्सर में स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स यानी कि अंदरूनी तह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ज़रिए डैमेज हो जाते हैं और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होती हैं, जो कि बैक्टीरिया की एक टाइप है. ये बैक्टीरिया स्पाइसी फूड के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं. इसके अलावा परेशानी और दबाव की वजह से अल्सर होता है. कुछ मेडिसिन्स मसलन एस्पिरिन की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी अल्सर होता है. Do you know? Diarrhea can be of 2 types, that is absolute and relative. Absolute diarrhea is defined as more than 5 liquid stools a day. Relative diarrhea is defined as an increase in the number of stools per day from usual habit. डायरिया 2 टाइप्स का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डायरिया. एब्सोल्यूट डायरिया वो होता है जिसमें पेशेंट को दिन में 5 से ज़्यादा बार लिक्विड स्टूल आता है. रिलेटिव डायरिया वो होता है जिसमें दिन में स्टूल की तादाद आम रूटीन से बढ़ जाती है. फैक्टर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया. फैक्टर्स लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन. द फैक्टर्स दैट लीड टू कॉन्स्टिपेशन आर, यानी कि ऐसे अवामिल जिनसे कॉन्स्टिपेशन होती हैं. पुअर डाइट सच एज फूड कंटेनिंग एनिमल फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध की बनी हुई अशिया, मीट्स एंड एग्स, एंड लो फाइबर शुगर होल ग्रेन्स यानी कि अनाज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हमारी खुराक में एनिमल फैट मसलन डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स और एग्स की मिकदार और लो फाइबर शुगर डाइट मसलन फल, अनाज और सब्जियों की मिकदार अगर कम हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. इनसफिशेंट मीन्स नाकाफ़ी वाटर इनटेक, जब हम पानी कम पीते हैं. समटाइम्स कैफीन एंड अल्कोहल इंड्यूस इंक्रीज्ड excretion and urination of water. This causes the dehydration means पानी की कमी that ultimately leads to constipation. बाज़-औक़ात कैफ़ीन और अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से एक्सक्रीशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा वाटर यूरिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है और इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है. मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन से एहतियाती तदाबीर. We should intake proper amount of measures for the prevention of constipation. Constipation से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर. To prevent the constipation, we should intake proper amount of certain foods and drinks. हमें proper amount में balanced food और drinks लेनी चाहिए. Proper exercise is also helpful. हमें proper exercise करनी चाहिए daily basis पे. We should also eat the high fiber foods, raw vegetables यानी कि कच्ची सब्जियां, cereals, अनाज and fresh fruits. हमें high fiber foods मसलन raw vegetables यानी कच्ची सब्जियां, fresh fruits और cereals खाने चाहिए. We should also drink at least 8 glasses of water a day for being healthy. और हमें हेल्दी रहने के लिए दिन में कम अज़ कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. Factors leading to diarrhea. Diarrhea is usually caused by यानी कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं.
वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स ऐसे जानदार जो दूसरों से खुराक हासिल कर सके। डायरिया वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स से कॉज होता है। स्ट्रेस यानी कि दबाव, एंग्जाइटी मीन्स परेशानी, यानी कि परेशानी और दबाव से डायरिया कॉज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, फूड एलर्जी, appendicitis, these damage to the internal lining of the intestines। ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, फूड एलर्जी और अपेंडिसाइटिस मतलब जब अपेंडिक्स में पस पड़ जाती हैं तो ये इंटेस्टाइन्स के अंदरूनी तह को डैमेज कर देते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड मेडिसिन्स कंटेनिंग मैग्नीशियम। मेडिकेशन मसलन एंटीबायोटिक्स और एंटासिड मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी डायरिया होता है। मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। टू प्रिवेंट डायरिया, वी शुड अवॉइड ईटिंग द अनहाइजीनिक फूड। हमें नाकिस खुराक को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड यूज़ ओनली प्योरीफाइड वाटर। हमें सिर्फ साफ़ पानी पीना चाहिए। वी शुड ईट प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट। हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड और फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए। Interesting information, traveling also have an effect on our digestive system that may result in constipation. When we travel, we eat meals and go to the toilet at different times. All these changes raise the chance of constipation. सफ़र में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है जो कब्ज़ का सबब बन सकता है। जब हम सफ़र करते हैं तो हम खाते हैं और मुख्तलिफ़ औकात में टॉयलेट जाते हैं। ये तमाम तब्दीलियाँ कब्ज़ के इम्कानात को बढ़ा देती हैं। This is the end of our reading and explanation class. We will do book exercise in our written work class. Hope you have learned the chapter. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.